All right, good evening, friends. Welcome you all to PSIR Edge channel on Telegram. So, this is the second part of topic number 8. So, we are doing back to basics quick revision series for political science optional. And right now, we are doing paper 2, section 1, जिसमें हम लोगों ने टॉपिक 1 से लेकर 7 तक कंप्लीट कर लिया है. और टॉपिक 8 जो है इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, जिसमें ब्रेटन वुड्स से लेकर WTO तक, सोशलिस्ट इकोनॉमी CMEA, थर्ड वर्ल्ड डिमांड जो है NIO का, एंड ग्लोबलाइजेशन. ये तीन चार टॉपिक्स है, इसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे. तो पार्ट 1 हमने कल कर लिया था, उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड करा हुआ है. ठीक है, प्लीज स्टार्ट करें सत्यम सर. कोई और पढ़ लो, मैं आगे का पढ़ लूंगा. ठीक है, मैं पढ़ लूं क्या? कोई समराइज करेगा? हेलो यार, कौन पढ़ेगा, कौन समराइज करेगा? और फाइनल कर दो प्लीज अभी इस एक दो टॉपिक के लिए, पहले वाले में. या फिर कोई और पढ़ लो, मैं समराइज कर दूंगा. इधर वे प्लीज वॉलंटियर गाइज. क्रिएचर, फोटोन, PC, गैरगॉन, उमेश, नवीन. सर मैं डिनर कर रहा हूँ, कर देता नहीं तो. हाँ, बाकी लोग बोल दो कोई. पढ़ देती हूँ. हाँ, प्लीज पढ़ लीजिए आप मैम. थैंक यू. ठीक है. Major issues in WTO at present. First issue is market access issue. There is a major conflict between India and USA. USA is offensive, whereas India is defensive. India and USA have conflict over first SSM, special safeguard measures. In case there is a import surge, country can impose tariff wall. India has kept a very low threshold limit. That is, even a small surge is seen by India as a reason to impose tariff wall. Second is special product. Certain products can be kept out of tariff liberalization subject to the condition the product is linked with rural development, livelihood issues, and employment. USA keeps minimum product in the list, maximum 5. India wants to keep as many products as possible, keeping very few out. Besides this, developed countries also impose non-tariff barriers, sanitary and phytosanitary measures. Second is export subsidies. This issue has been resolved as a part of Nairobi package. Third issue is domestic support. It is most controversial and is related to food security issue. EU and USA allege that in India there is lack of transparency and the amount of subsidy given to the farmers has gone beyond the permissible limits. India and other developing countries have been offered peace clause at Bali. It was expected that permanent solution will come at Buenos Aires Summit, Argentina 2017. No permanent solution emerged from the summit. Hence, the talks have collapsed. WTO talks at Buenos Aires collapsed because India maintained the position that first, food security issue has to be resolved. India is seen as a spoiler. At international level, India's image is of a spoiler, tough negotiator but poor bargainer. India has been defensive about other proposed agreements, example in e-commerce, IT and fisheries. ठीक है, इतना से एक बार समराइज कर लेते हैं. तो पहला 3 इश्यूज बताए इन्होंने: मार्केट एक्सेस का, एक्सपोर्ट सब्सिडी एंड डोमेस्टिक सपोर्ट. तो मार्केट एक्सेस में 2 स्टैंड है. एक यूएसए का ऑफेंसिव स्टैंड होता है, वेयर इंडिया का डिफेंसिव स्टैंड होता है. तो इसके अंदर 2-3 कीवर्ड्स बस याद रखो: स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म या फिर मेजर्स, एंड स्पेशल प्रोडक्ट. तो स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म क्या होता है? जब भी इंपोर्ट सर्ज हो जाए तो कंट्री कैन इम्पोज टेरिफ वॉल. तो ये अलाउड है, लेकिन इंडिया ने इसका जो थ्रेशोल्ड रखा है वो बहुत कम रखा हुआ है. तो ये एक प्रॉब्लम है. जैसे स्पेशल प्रोडक्ट होता है ना, तो सर्टेन प्रोडक्ट्स कैन बी केप्ट आउट ऑफ टेरिफ लिबरलाइजेशन
सब्जेक्ट टू कंडीशन की प्रोडक्ट इज लिंक्ड टू रूरल डेवलपमेंट, लाइवलीहुड इश्यूज एंड एम्प्लॉयमेंट। तो मतलब ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स है जो स्पेशली माने जाते हैं रूरल डेवलपमेंट, लाइवलीहुड इश्यूज, एम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में रिलेटेड है, तो उनको टेरिफ लिबरलाइजेशन से दूर रख सकते हैं। तो यूएसए के लिए कम से कम है, मैक्सिमम 5 है, लेकिन इंडिया को बहुत ज्यादा बढ़ानी है इसको। तो वही मतलब डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग का डिबेट इसमें भी है, दो चीजों में, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म एंड स्पेशल प्रोडक्ट में। सब्सिडी इशू बोल रहे हैं कि नैरोबी पैकेज में रिजॉल्व हो गया है। कैन समबडी एलैबोरेट कि क्या था ये एक्सपोर्ट सब्सिडी का इशू? सर मतलब इसमें ये था कि जो कंट्रीज होती थी वो अपने हिसाब से वो सब्सिडी प्रोवाइड करवाती थी। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज थी कि उन्होंने फिर सबने मिलके ये बोला कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो 10% तक प्रोवाइड करवा सकती है और जो डेवलप्ड कंट्री है वे 5% तक करवा सकती है, जब जब तक कोई कंसेंसस नहीं बनती है। ये 5 और 10 वाला शायद अलग है शायद, या ये वाला है वो डिफरेंट थिंग है ना शायद। वो आप खाने वाने के लिए जो सब्सिडी दे रहे हैं अपना जो भी एस 1986 उसके कॉन्टेक्स्ट में है शायद ये। सर एक बार फिर मैं दोबारा चेक करके बता दूंगा अगर ऐसा हो तो। एक्सपोर्ट सब्सिडी नाम से तो वही लग रहा है यार, जो एक्सपोर्टर्स को देते हैं ना, वो वाली सब्सिडी है। जैसे इंडिया में कोई स्कीम निकाल के दूसरा लेके आए थे ना अभी रिसेंट टाइम्स में, डब्ल्यूटीओ को कंप्लाई करने के लिए, याद है किसी को? ठीक है। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है यार सभी को कि बेसिकली व्हाट वी आर रीडिंग इज जस्ट अ शॉर्ट नोट या फिर क्रिस्प नोट्स है, इसमें सब कुछ समझ नहीं आएगा। तो इफ एट ऑल यू गाइस कैन ओपन योर नोट्स और बुक्स या जो भी आपने रिसोर्सेज फॉलो करे हैं, इट वुड बी बेटर, है ना? तो रिक्वेस्ट अगेन सभी को कि प्लीज कंट्रीब्यूट करें, प्लीज रिस्पॉन्स करें एंड पार्टिसिपेट एज मच एज पॉसिबल। तीसरा मुद्दा है यहाँ पे डोमेस्टिक सपोर्ट के बारे में। ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि ये फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। जो यूरोप या फिर यूएसए जैसे कंट्रीज है, वो बोलते हैं कि जो ये डेवलपिंग कंट्रीज है वो डोमेस्टिक सपोर्ट के नाम पे लिमिट्स वगैरह ट्रांसपेरेंट नहीं दिखाते, सब्सिडी कितना है वो सब ट्रांसपेरेंटली बोलते नहीं है। एंड इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज को पीस क्लॉज एक बाली कॉन्फ्रेंस में हुआ था, जिसके तहत अलाउड है कि फूड सिक्योरिटी हम कर सकते हैं। लेकिन वही है, इसको मतलब ये टेम्पररी दिया हुआ था ये, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन अभी तो निकला नहीं है। ठीक है। एंड इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का इमेज ऐसा है कि स्पॉइलर है, टफ निगोशिएटर है एंड पुअर बार्गेनर है, और इंडिया डिफेंसिव है अबाउट प्रपोज्ड एग्रीमेंट्स। ठीक है, दैट्स इट। आगे चलते हैं। मैम प्लीज कंटिन्यू। सर डोमेस्टिक सपोर्ट में ये भी एक पॉइंट है कि डब्ल्यूटीओ की जो पॉलिसीज आई उसके बाद से एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी में मतलब बहुत जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो बहुत स्टैग्नेट हो गई और नेगेटिव ट्रेंड में गई। और जो इंडिया का अगर पर्सपेक्टिव देखेंगे तो इंडिया में मतलब फार्मर सुसाइड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, हंगर, मैल न्यूट्रिशन और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म राइज हुआ है। ओके मैम। हाँ, ये मेरे पास नोट्स में लिखा है। नैरोबी पैकेज जो आप पूछ रहे थे ना उसमें ऐसा है, ये 15 में आया था, गूगल करोगे तो उसमें वही था कि अंडर मिनिस्ट्री डिसीजन एक्सपोर्ट को कंपटीशन करने के लिए ये लोग लेके आए थे। तो उसमें ये बोला गया कि डेवलप कंट्री हैड टू अबॉलिश द फार्म एक्सपोर्ट सब्सिडीज विद इमीडिएट इफेक्ट। थोड़ा बहुत एक्सेप्शन है, और जो डेवलपिंग के लिए है उनको एलिमिनेट करना होगा। एक्सपोर्ट सब्सिडी ऑन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट वाज फिक्स 2018। सो डेवलप्ड का तुरंत बोला गया, 15 में आया था नहीं, और डेवलपिंग को 2018 में करना था। तो कुछ ऐसा है यार ये, मतलब जो आप पूछ रहे थे ना, पोरेस्ट और इम्पोर्ट फूड इम्पोर्टिंग नेशन को थोड़ा बहुत इसमें वो दिया गया है, फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह। तो दिस वाज रिलेटेड टू दैट थिंग, मतलब एक्सपोर्ट के लिए जो आप बोल रहे थे वही है। ठीक है, चलो आगे, प्लीज कंटिन्यू मैम। ठीक है। WTO and agriculture.
Impact of WTO policies on agriculture. Agriculture has been the backbone of most of the countries in the third world. It has been worst affected by WTO policies. WTO policies not only had adverse economic consequences, they have adverse environmental, social, political, and security consequences. Since WTO came into existence, the problem of hunger and malnutrition has increased many times. Farmer suicides have also increased. Why such an impact? When developing countries entered into agreements, they had very limited experience and understanding of the WTO agreements, which can be called as lawyer's paradise. Developing countries lacked capacity to understand the nuances लिखा है क्या? हाँ, nuances. Okay. Nuances of international trade. Developed countries took advantages and imposed unfair agreements. Hence, Doha Development Agenda emphasized on not only free but fair agreements. The most unfair has been the game of boxes played by the developed countries. How does WTO agreements contradict the food security program? Comparison between North and South in context of agriculture. In North, agriculture is a commerce, but in South, it is a way of life. In North, the climatic conditions are favorable, whereas in South, adverse climatic conditions persist. इसको थोड़ा नीचे करना रहेगा. In developed countries, agriculture is a part of 3% of their GDP, whereas in South, the average share is 30% of GDP. In case of India, it is 16% of GDP. In developing countries, around 17% of the population depend on agriculture. Developing countries for employment, whereas in developed countries, just 3 to 4%. In developed countries, per capita land holding is huge, whereas in developing countries, it is very small. In developed countries, agriculture is done as a commerce, but in developing countries, most of the farmers are subsistence farmers. Agriculture subsidies and game of boxes. WTO policies has resulted into developing countries reducing the domestic support. It has exposed our farmers to the fluctuations of international market. They have to face tough competition from the farmers of developed countries. Playing the game, developed countries continue to provide huge subsidies. The average subsidy given to farmer in India is $306 for farmer per year. China $348 per farmer per year. European Union 12,384 per farmer per year. USA 68,910. Since the WTO has come into existence, developed countries have actually increased the subsidy. In 1995, USA was giving subsidy of $46.1 billion, which they have increased in 2011 to $125.1 billion. At present, the subsidy are given through 3 routes. Green box, they are meant for research development, not considered as trade distorting subsidies, hence no limit. Hence, developed countries have been dispersing the subsidies through this route. Blue box subsidies. Blue box subsidies are part of amber box but are not considered as trade distorting. In fact, they decrease the production. Example, subsidies given to farmers to shift towards animal husbandry. No limit, and primarily EU gives these subsidies. Amber box subsidies, they are considered as trade distorting because they are given for the purpose which increase the production like fertilizers, seeds, electricity, irrigation, etc. Since they are trade distorting, there is a limit 5% of the total value of their produce per year for developed countries and 10% of total value of their produce per year for developing countries.
Value of the produce is calculated at the rate of the prices prevailing between 1986 to 1988, the time of Uruguay round of talks. In real terms, the amount of subsidy permitted to developed countries is many times more. There were two options available. First, either spread the subsidy across the products or concentrate it to few products. Developed countries have chosen for the cumulative subsidy, concentrating on 2 or 3 crops in July 2017. India and China have presented the paper to show how developed countries played with the norms. The paper also mentions that there have been times when developed countries have been giving subsidy of up to 300 to 400% to particular crops, targeting the market of developing countries. इसको और नीचे करना रहेगा ना, नीचे का पढ़ रहे थे. ज्यादा नीचे हो गया शायद. बस बस बस. How food security programs at developing countries come in conflict with the limit imposed by amber box subsidies. Since government has to give MSP to the farmers, so they continue to produce food crops. MSP is seen as a trade distorting measure. Developed countries also accuse that the real objective of developing countries is to dump cheap food grains in international markets, unfair competition policy. India's expectations: food security programs to be brought under green box. End the boxes. If present system is to be continued, then revise the base prices, taking into account the inflation in food items. But so far there is no progress. USA has threatened that they will come out of WTO. At WTO, agricultural negotiations include following groupings. First है cotton 4 countries, C4, Mali, Chad, Burkina Faso and Benin. Second है G20, group of developing countries negotiating export subsidies. Third है G33, group of developing countries negotiating public stock holding. Fourth है Cairns group, major exporting countries Australia, New Zealand and Brazil. ठीक है, इतना एक बार समराइज कर लेते हैं. पहले हाँ. Am I audible, guys? हाँ, you're audible. ओके, तो अपन देख रहे थे WTO एंड एग्रीकल्चर. इसमें पहला है कि तो इम्पैक्ट ऑफ WTO पॉलिसीज क्या हुआ है एग्रीकल्चर पे. तो वही बोला है कि यार एग्रीकल्चर बैकबोन है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का एंड इसका वर्स्ट इम्पैक्ट हुआ है. मतलब नॉट ओनली एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट, एनवायरमेंटल, सोशल, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी कॉन्सिक्वेंस भी हुए हैं. WTO की वजह से हंगर एंड माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम बढ़ चुका है, फार्मर सुसाइड बढ़ गए हैं. तो क्यों हुआ ऐसे, वाई सच इम्पैक्ट? क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज को लिमिटेड एक्सपीरियंस था एग्रीमेंट्स के बारे में, जो लॉयर्स पैराडाइज होते थे. तो छोटे छोटे नुआंसेस, जो फाइनर नुआंसेस है, वो नहीं पता थे डेवलपिंग कंट्रीज को जब एग्रीमेंट में जा रहे थे. डेवलप्ड कंट्रीज ने इसका एडवांटेज लिया
Hence, Doha Development Agenda emphasized not only free but fair agreements. ठीक है, तो फेयर एग्रीमेंट की बात करी है दोहा राउंड में. एंड मोस्ट अनफेयर क्या है, तो गेम ऑफ बॉक्सेस है, वो जो आगे देखेंगे अपन. तो हाउ डज WTO एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रडिक्ट फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम. तो इसमें कंपैरिजन दिया है नॉर्थ एंड साउथ का क्या डिफरेंस है एग्रीकल्चर में. तो नॉर्थ में एग्रीकल्चर इज कॉमर्स, बट इन द साउथ, मतलब ये एक्चुअली ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं. तो इन द नॉर्थ एग्रीकल्चर इज कॉमर्स, बट इन साउथ इट्स अ वे ऑफ लाइफ. नॉर्थ में क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल है, साउथ में एडवर्स है. डेवलप्ड कंट्रीज में एग्रीकल्चर इज 3% ऑफ GDP, whereas इन सदर्न कंट्रीज 20 to 30% है. इन इंडिया इट इज 16% ऑफ GDP. डेवलप्ड कंट्रीज के इसमें डेवलपिंग कंट्रीज में 17% पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, वाइल डेवलप्ड कंट्रीज में 3 to 4% डिपेंड करते हैं बस. तो मतलब GDP कॉन्ट्रीब्यूशन भी 3 to 4% है एंड पॉपुलेशन भी उतना ही है, कम. अच्छा, पर कैपिटल लैंड होल्डिंग भी डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत ज्यादा है, डेवलपिंग कंट्रीज में फ्रैगमेंटेशन हो रखा है. फिर वही पॉइंट रिपीट करा है. सब्सिस्टेंस फार्मर्स है डेवलपिंग में, वहां पे कमर्शियल फार्मिंग ज्यादा होती है. एग्रीकल्चरल सब्सिडीज एंड गेम ऑफ बॉक्सेस. तो ठीक है, तो मतलब एक पहला पॉइंट ये है कि WTO की पॉलिसीज की वजह से डोमेस्टिक सपोर्ट कम हो चुका है एंड फार्मर्स नाउ हैव टू फेस द फ्लक्चुएशंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट. तो वही मतलब टफ कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ता है. एंड डेवलप्ड कंट्रीज कैन गिव ह्यूज सब्सिडीज, बट बाकी नहीं दे पाते. तो एवरेज सब्सिडी गिवन टू फार्मर्स कितना है. इंडिया में $306 पर फार्मर पर ईयर है, चाइना में 348 पर फार्मर पर ईयर है, EU में $12,300 पर फार्मर पर ईयर, USA में $68,900 पर फार्मर पर ईयर. तो जब WTO बना था पहली बार में, तब से डेवलप्ड कंट्रीज ने सब्सिडी बढ़ाई है. जैसे 1995 में USA 46 बिलियन दे रहा था, जो कि अभी 125 बिलियन सब्सिडी दे रहा है. 3 रूट से सब्सिडी होती है, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड एम्बर बॉक्स. ग्रीन बॉक्स कौन सा होता है, रिसर्च वाला है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, तो जो कि ट्रेड डिस्टॉर्टिंग नहीं होते हैं, इसलिए इसमें कोई भी लिमिट नहीं है. ब्लू बॉक्स जो होता है ना, दे आर पार्ट ऑफ एम्बर बॉक्स, ये भी ट्रेड डिस्टॉर्टिंग नहीं होते हैं. इसमें क्या होता है कि फार्मर्स को प्रमोट करा जाता है कि आप फार्मिंग छोड़ के कुछ और अडॉप्ट कर लो, जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, तो इसलिए देयर इज नो लिमिट ऑन दिस. ठीक है, तो ब्लू बॉक्स में वी आर टेलिंग फार्मर्स कि आप एनिमल हस्बेंड्री वगैरह अदर चीजें कर लो. फिर एम्बर बॉक्स सब्सिडी है, दीज आर कंसिडर्ड ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी, क्योंकि इसमें इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन के लिए देते हैं, जैसे फर्टिलाइजर, सीड, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन. एंड इंडिया में अगर देखोगे तो यही होता है सारा मैक्सिमम. इसमें लिमिट होता है कि 5% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ देयर प्रोड्यूस पर ईयर फॉर डेवलप्ड कंट्रीज एंड 10% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ देयर प्रोड्यूस पर ईयर फॉर डेवलपिंग कंट्रीज. एंड जो वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस है, ये 1986 to 88 के रेट्स जो प्राइजेस थे उसके अकॉर्डिंगली काउंट करेंगे. तो ये बेसिकली था राउंड ऑफ उरुग्वे टॉक्स. इन रियल टर्म्स द अमाउंट ऑफ सब्सिडी जो है ना परमिटेड, ये डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ज्यादा है, बहुत ज्यादा है. ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन थे, मतलब इधर स्प्रेड द सब्सिडी अक्रॉस प्रोडक्ट और कॉन्सेंट्रेटेड टू फ्यू प्रोडक्ट्स. डेवलप्ड कंट्रीज ने चूज करा है कि क्यूमुलेटिव सब्सिडी देना है, कॉन्सेंट्रेटिंग फॉर 2 or 3 क्रॉप्स. एंड इसमें इंडिया चाइना ने पेपर दिखाया है, छोड़ो इसको, आगे चलते हैं. तो हाउ फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज कम इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लिमिट्स इम्पोज बाय एम्बर बॉक्स सब्सिडीज. तो इन जैसे गवर्नमेंट से MSP देते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर फार्मर्स, तो ये प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए होता है. तो दिस इज कंसिडर्ड ट्रेड डिस्टॉर्टिंग मेजर. तो मतलब डेवलप्ड कंट्रीज इसको एक्यूज करते हैं कि ये डंपिंग पॉलिसी है, मतलब ग्रेन्स कम प्राइस में प्रोड्यूस करो एंड इसको कम प्राइस में बेच दो बाहर. ठीक है, तो ये अनफेयर कंपटीशन पॉलिसी ऐसा बोलते हो. फिर इंडिया का एक्सपेक्टेशन क्या है, पहले तो जो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है उसको ग्रीन बॉक्स में लेके आ जाओ, या फिर बॉक्सेस को ही खत्म कर दो. एंड अगर सेम सिस्टम चलानी है तो जो बेस प्राइजेस है उसको हटा दो. तो 1986 वाला जो बेस प्राइस था उसको चेंज कर दो. ठीक है, ये USA थ्रेटन कर रहा है कि हम छोड़ देंगे WTO. और कुछ ग्रुपिंग्स है WTO में. C4 कंट्रीज है, कॉटन कंट्रीज,
माली, चैड, बुर्किना फासो, बेनिन। G20 है जो ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज बोलते हैं, हु आर ट्राइंग टू निगोशिएट एक्सपोर्ट सब्सिडीज। G33 है जो ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज है, हु आर निगोशिएटिंग पब्लिक स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स वगैरह के बारे में। एक है केन्स ग्रुप जो मेजर एक्सपोर्टर्स है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील। तो ये याद रख लो यार। कॉटन 4 अफ्रीका वाले हैं, केन्स ग्रुप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाले हैं, एंड G33 G20। ठीक है सर, प्लीज कंटिन्यू हेड। मैं पढ़ लेता हूँ। Other disputes at WTO. NAMA, Non-Agriculture Market Access. Developed countries have already reduced the tariffs, and developing countries are supposed to reduce the tariffs. But developed countries have imposed non-tariff barriers, and developing countries didn't get any major advantage from tariff reduction. Developing countries do not want to reduce the tariffs, also because customs duties are major source of developmental expenditure for them. At present, there is a tariff war going on between USA and rest of the world, but particularly against China. India also has been accused of unfair practices. However, India have reduced customs duties considerably. Example, in 1991-92, the custom duties on Indian products has been 150%, which has been reduced to 10%. According to USA, there is underreporting, lack of transparency, red tapeism, corruption. Intellectual property rights. USA accused China of coercing foreign companies to transfer their technology. There is a huge dispute between India and USA and EU in the context of pharmaceuticals. WTO policies created a situation of health epidemic in poor countries of Africa. Hence, developing countries could pressurize the developed countries to grant exemption or compulsory licensing of certain life-saving drugs. EU has complained against India exporting the generic drug to African countries. According to EU, exemption is meant only for domestic use. Service sector. Weakest agreement are in this sector. Considering the sensitivity, WTO has gone for bottom-up approach where countries can themselves decide about amount of liberalization. Service sector negotiations are happening in 4 modes. Mode 1, where services are consumed abroad like BPO, business process outsourcing sector. India is offensive, but developed countries are defensive. EU does not give India the status of data secure country. Mode 2, where consumer absorb the service in country of service provider. Example, tourism. Western countries are in favor of these services. Mode 3, establishing commercial presence abroad like banking and insurance sector. Developed countries interest. Movement of natural persons. India is offensive, but West is defensive. Future prospects of WTO. USA calls WTO a catastrophe or disaster. WTO has to shape up, otherwise USA will withdraw. USA is not in favor of multilateralism. USA is playing the game of bad cop Trump and good cop. US Secretary of Trade Lighthizer has accused that USA will continue WTO. China, India, EU, Canada are working hard so that WTO continues. These countries have organized informal ministerial conferences. However, the approach of developed and developing countries seem to be divergent. Example, the Ottawa Communique has suggested following options: end of consensus rule and introduce qualified voting. Any WTO resolution can be passed by voting majority of 85%. Share of countries will be determined by their share in world trade. It has been suggested that WTO should allow plurilateral agreements. Other countries can join agreements later. The developing countries will get exemption on a case-to-case basis. WTO allows special and differential treatment to developing countries. USA has an objection treating China and India as developing countries. India does not support any of the proposals. According to USA, WTO is a raw deal for USA. 5 out of 6 richest countries claim differential treatment.
There should be no self-proclaimed development status. Short note on WTO and developing countries. WTO has been proposed as a means to address the poverty of developing countries. Under WTO, there is a provision for special and differential treatment, capacity building for developing countries. Decision is taken by consensus. Multilateralism is good for weak countries rather than going for bilateral deals. With the exemption of semi-peripheries, WTO has not benefited the developing countries as promised. Developed countries continue to be protectionist. It has even impacted the food security in developing countries. Developed countries go for coercive diplomacy, known as green room diplomacy. Many developing countries have not even used the dispute settlement body even once. ठीक है, तो I'll try to summarize. Am I audible, right? हाँ. ओके, तो इसमें अदर डिस्प्यूट्स और WTO कौन से हैं? एक है नामा, नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस। तो इसमें मतलब ऐसा बोला है कि डेवलप्ड कंट्रीज ने टेरिफ कम कर दिए हैं एंड डेवलपिंग कंट्रीज आर सपोज टू रिड्यूस द टेरिफ। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज जो है ना, वो नॉन टेरिफ बैरियर्स लगाती है एंड इसकी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज को कोई एडवांटेज नहीं मिल पाता उसका। किसी को कुछ याद आ रहा है क्या नॉन टेरिफ बैरियर क्या क्या है? वही है ना, फाइटोसैनिटरी मेजर्स। करेक्ट, फाइटोसैनिटरी मेजर्स। और कोटा लगा दिया आपने कि इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ। ठीक है, कोटा और यही है दो। क्वालिटी चेक होता है ना शायद, लेकिन वो सैनिटरी वाले में आएगा, उसी में आ जाएगा। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज डू नॉट वांट टू रिड्यूस द टेरिफ्स क्योंकि उनके लिए कस्टम ड्यूटी मतलब मेजर सोर्स है एक एक्सपेंडिचर का, फिर टैक्स का। टेरिफ वॉर चल रहा था अभी बीच में यूएसए वर्सेस चाइना का। इंडिया को भी एक्यूज करा जाता है अनफेयर प्रैक्टिसेस के लिए। ठीक है यार, बाकी आगे चलते हैं, थोड़ा सा नीचे ले लो। सर्विसेज सेक्टर जो है उसमें बोन ऑफ कंटेंशन क्या है? देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज, मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4। तो मोड 1 ऐसे होता है जो सर्विसेज कंज्यूम होते हैं अब्रॉड, जैसे बीपीओ सेक्टर हो गया। तो इसमें इंडिया ऑफेंसिव है बट डेवलप्ड कंट्रीज आर डिफेंसिव एंड ईयू ने इंडिया को डेटा सिक्योर कंट्री का स्टेटस नहीं दिया है। मोड 2 जो होता है जिसमें सर्विसेज होते हैं एब्जॉर्ब होते हैं उसी जगह पे, उसी कंट्री में, जैसे एग्जांपल टूरिज्म हो गया, तो इसको वेस्टर्न कंट्री सपोर्ट करते हैं। मोड 3 होता है जिसमें कमर्शियल प्रेजेंस है सिर्फ अब्रॉड में, जैसे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर। एंड मोड 4 हो गया मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्संस, इसमें भी इंडिया ऑफेंसिव बट वेस्ट डिफेंसिव है। ऑब्वियसली दे डू नॉट वांट मूवमेंट ऑफ पीपल। ठीक है यार, इसमें इतना ही है सर्विस सेक्टर का। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखने से पहले कुछ ऐड करना है किसी को इसके बारे में, नामा के बारे में या फिर सर्विस सेक्टर के बारे में? एनीथिंग इन न्यूज वगैरह? ये बाली में साइन हुआ था ना 2013 में सर्विस वाला एग्रीमेंट। स्टार्टिंग में नहीं था, मतलब डब्ल्यूटीओ में, ये स्पेशल केस में ये लोग लेके आए बाद में, बाली कॉन्फ्रेंस में 17 में फोर्स में आया। ओके सर, ठीक है, आगे देखते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डब्ल्यूटीओ क्या क्या है। तो यूएसए बोलता है कि डब्ल्यूटीओ एक डिजास्टर है, डब्ल्यूटीओ चेंज नहीं हुआ तो यूएसए विल विड्रॉ, ऐसे बोलते हैं वो। यूएसए डज नॉट फेवर मल्टीलैटरलिज्म, तो मल्टीलैटरलिज्म के अगेंस्ट है। लेकिन अब ये पुरानी चीजें हो गई सारी, वैसे ट्रम्प की पॉलिसी था बेसिकली जब ये नोट्स वगैरह लिखे थे। अभी बिडेन के क्या क्या है वो तो सपोर्ट ही करते हैं मल्टीलैटरलिज्म को। तो इसमें ऐसा है कि चाइना, इंडिया, ईयू वगैरह दे वांट कि डब्ल्यूटीओ कंटिन्यू हो जाए। ठीक है, तो इसमें मतलब कुछ सजेशन थे कि क्या क्या करना चाहिए। एक सजेशन ये है कि भाई कंसेंसस जो रूल है ना उसको खत्म कर दो एंड क्वालिफाइड वोटिंग कर दो। तो मतलब 85% वोटिंग से पास हो जाना चाहिए, ऐसा भी कर सकते हैं। और ऐसा है कि प्लूरलैटरल एग्रीमेंट शुड बी अलाउड। प्लूरलैटरल मतलब सम कंट्रीज, नॉट नेसेसरी कि सभी जो लोग आ जाए उसमें।
फिर डेवलपिंग कंट्रीज को एग्जाम्पशन केस बाय केस बेसिस पे मिलना चाहिए, क्योंकि WTO अलाउ करता है स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। यूएसए को ऑब्जेक्शन है कि इंडिया एंड चाइना कैसे डेवलपिंग कंट्री थे, और इंडिया डज नॉट सपोर्ट एनी ऑफ द प्रपोजल्स। अकॉर्डिंग टू यूएसए WTO रॉ डील है उनके। ठीक है, आगे चलते हैं। शॉर्ट नोट है WTO का डेवलपिंग कंट्रीज का। ठीक है, तो WTO प्रपोज किया था पॉवर्टी हटाने के लिए, जिसमें स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर रहे थे, डिसीजन कंसेंसस से लेने थे। मल्टीलैटरलिज्म वीकर कंट्रीज के लिए हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि बायलैटरल टॉक्स में वो ज्यादा बार्गेन नहीं कर पाते हैं। और एक और पॉइंट है कि एक्सेप्शन ऑफ सेमी पेरिफेरीज, बाकी डेवलपिंग कंट्रीज को इतना बेनिफिट नहीं हुआ है। डेवलप्ड कंट्रीज हमेशा से ही प्रोटेक्शनिस्ट रहे हैं। डेवलप्ड कंट्रीज आर फॉलोइंग कोर्सिव डिप्लोमेसी, जैसे ग्रीन रूम डिप्लोमेसी। एंड जो स्मॉलर कंट्रीज है वो तो डिस्प्यूट सेटलमेंट वगैरह यूज भी नहीं कर पाते। ठीक है, दैट्स इट। थर्ड वाला खोल लीजिए सर। स्पेशल बट डिफरेंशियल क्या है, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में है ये? सबके कॉन्टेक्स्ट में है क्या? एग्रीकल्चर में क्या कह रहे हो सर? ये स्पेशल बट डिफरेंशियल ट्रीटमेंट वाला वर्ड आ रहा है ना बारी बारी, ये किस कॉन्टेक्स्ट में है? मतलब पूरे उसमें है क्या, एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर, या फिर स्पेसिफिक है किसी चीज को लेंगे? पर आई थिंक ये पूरा WTO के लिए है। जैसे क्लाइमेट चेंज में नहीं होता है स्पेशल बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा कुछ तो कॉमन कॉमन बट CBD आ रहा ना, वैसा कुछ हाँ हो गया इसमें भी। जैसे कि इसका एग्जांपल लेना हो तो जैसे 5% 10% रूल है ना, अब सब पे कॉमन भी लगा सकते थे वो लोग, लेकिन वही है, दे आर एक्नॉलेजिंग कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज को नीड स्पेस, इसलिए वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे रहे हैं। ओके। कुछ ऐड करना है किसी को इसके बारे में, WTO के बारे में जो भी अपन डिस्कस किया उसके बारे में? अपने नोट्स में कुछ एक्स्ट्रा दिया हो आप लोग के पास में, प्लीज चेक योर नोट्स, या फिर एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड। करंट अफेयर्स कुछ याद आ रहा हो किसी को? ठीक है सर, आगे पढ़ लीजिए प्लीज। Okay. International Economic System, WTO and IMF. Purpose of IMF. Short-term liquidity to deal with BOP crisis. However, later on IMF has established new facilities. Now IMF is also involved in poverty reduction programs. Several IMF facilities. Standby facility. Short-term loan for BOP crisis. Extended fund facility. Some countries cannot overcome this crisis without structural reforms. Example India. Supplementary reserve facility in case there is a sudden flight of capital. Poverty and growth fund given to low-income countries. European financial stabilization facility created after Eurozone crisis. What reforms are needed and why? Most urgent reform is that IMF needs more funds. The volume of international trade has increased. More countries are approaching to IMF more frequently, but it lacks funds, as seen during Greek debt crisis. But it is not an easy task. Subscription by countries is linked to voting rights. IMF was created by USA to establish its hegemony. USA has the largest amount of vote share, around 17%. Hence, no decision can be taken at IMF without consent of USA. USA does not want that its share decrease, but USA is not in position to give funds either. China is willing to give funds, but IMF is not permitting China to increase the subscription substantially. Hence, US policies are ultimately weakening IMF. BRICS countries had major agenda of reforms of IMF G20 summit in Seoul 2010. Accepted the proposal. However, it has been implemented only in 2016. More than 6% quota share has shifted towards emerging economies. Presently, US's share has gone down from 17 to 16.7%.
China's share has increased from 3.8 to 6%. India's share increased marginally from 2.3 to 2.6%. Greater share means greater say. Biggest problems is that when countries approach the liquidity or loans, IMF imposes conditionalities. When developing countries do not accept developed countries' point of view at WTO, they utilize IMF route to force them to open their economies. At IMF, they hardly have any say. Conditionalities are also imposed when countries approach for increasing their vote share. They impose the conditions to introduce market economy. Hence, China has started creating its own institutions like AIIB, NDB, BRICS, CRA, Currency Reserve Agreement. Over. ओके, मैं देखता हूँ। IMF इसका पर्पस स्टार्टिंग में था कि जो BOP क्राइसिस होता है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी से उसको एड्रेस करने के लिए, बट लेटर इट्स हैज एक्सपेंडेड इट्स होराइजन, तो आजकल ये पॉवर्टी वाला भी काम देख लेता है। कुछ फैसिलिटी है, पहला है स्टैंड बाय फैसिलिटी, शॉर्ट टर्म BOP के टाइम में लोन देना। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, सम कंट्रीज कैन नॉट ओवरकम क्राइसिस विदाउट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, मतलब लोन भी देंगे और आपको फोर्स करेंगे कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करो, जो अपन ने 1991 में किया था, ठीक है। सप्लीमेंट्री रिजर्व फैसिलिटी होगा एक, मतलब कैपिटल आपकी कंट्री से फ्लाइट हो गया तो उस टाइम ये लोग देते हैं। पॉवर्टी एंड ग्रोथ फंड होता है इनका लो इनकम कंट्रीज के लिए। यूरोपियन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फैसिलिटी, ये यूरोजोन क्राइसिस में ये लोग लेके आए थे। कुछ रिफॉर्म की जरूरत है इसमें। सबसे पहला तो यार फंड ही नहीं है इनके पास, ठीक है। यूएस मेन फंड रहा है, तो वही आजकल रिलक्टेंट, तो इश्यू है ये वाला डेब्ट क्राइसिस के साथ, ग्रीन वाली डेब्ट क्राइसिस में देखा गया था। सेकंड है बट इज नॉट एन इजी टास्क सब्सक्रिप्शन बाय, मतलब ये क्या दिक्कत क्या है कि आपका सब्सक्रिप्शन आपकी वोटिंग राइट से लिंक है, मतलब कि ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव यूएसए ने अपनी हेजमनी बनाने के लिए इसको किया था, आईएमएफ को क्रिएट करने के, आईएमएफ को क्रिएट किया था उसने। तो यूएसए लार्जेस्ट है 16.7 पे अभी, और शायद कोई भी एग्रीमेंट के लिए 85% चाहिए, तो यूएस के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं लगा, मेन बात वही है। तो यूएसए नहीं चाहता कि उसका शेयर डिक्रीज हो, और ना ही वो फंड दे रहा है, तो ये डायलामा टाइप का सिचुएशन आ रहा है। चाइना फंड दे रहा है बट उसको कंट्रीज परमिट नहीं कर रही, यूएस चाहता है उसकी हेजमनी बना रहे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इन दोनों का यहाँ भी। फिर नीचे करिए सर। हैंस यूएस और चाइना, मतलब यूएस की पॉलिसी से ये थोड़ा वीक हो रहा है। ये लोग रिफॉर्म लिए हैं, मतलब कि 2016 में, तो यूएस का थोड़ा शेयर कम हो गया यार, 17 था वो 16.6 हो गया, 16.7 हो गया। चाइना का 3.8 से 6 हो गया है, ठीक है। इंडिया का भी अपना बढ़ गया थोड़ा 0.3 से, तो 2.6 हो गया। ग्रेटर शेयर का मतलब होगा ग्रेटर से। द बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है आईएमएफ का, कि कोई भी हम लोन वो लेने जाते हैं बीओपी के टाइम में कुछ भी हो, तो ये लोग कंडीशनल लगाते हैं, मतलब जो काम WTO में नहीं कर पाते डेवलप्ड और यूएसए, वो इसके थ्रू करवाते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म वगैरह लेना, कंडीशन इम्पोज कर देंगे, ठीक है। एट IMF they hardly have any say developing world, conditions are imposed on them when they approach for the loan। और वोट शेयरिंग बढ़ाने के लिए भी उन पे कंडीशन लगाया जाता है। तो इसको काउंटर करने के लिए ब्रिक्स और चाइना और इंडिया ने क्या किया है, AIIB हमने चालू किया है, न्यू डेवलपमेंट हमने चालू किया है, ठीक है। ब्रिक्स CRA हमने चालू किया है। सो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अल्टरनेटिव फॉर दिस IMF एंड US लेड न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर। थैंक यू। ओके, तो इतनी ये था IMF के बारे में। किसी को कुछ ऐड करना है क्या? उमेश, क्रिएचर, KJ, PC। सर तब तक आप वो दूसरा वाला ओपन कर लीजिए। आई थिंक इसमें हो गया ना, शायद इसमें नोट्स में इतना ही था। हाँ, इसमें इतना ही था। हाँ, दूसरा वाला देख लीजिए, डॉक्यूमेंट जो है प्रॉपर नोट्स में। WB के बारे में नहीं है क्या इसमें, वर्ल्ड बैंक? पता नहीं सर अभी एग्जैक्टली क्वेश्चन आया वर्ल्ड बैंक का तो नहीं आता क्वेश्चन कभी इसमें, WTO ही में होता है। तो IMF का भी नहीं आता सर, WTO के अलावा किसी का नहीं आता।
और कभी आया नहीं है क्या IMF पे? पहले पूछा हुआ कभी यार, बट आजकल तो वो एज ए होल ही पूछ लेता है कि वेस्टर्न लेड इंटरनेशनल ऑर्डर, तो हाँ उसमें सभी इसीलिए। नहीं आता मतलब। हाँ सभी आया था। ये WTO का ये वाला टॉपिक है ना। हाँ बट WTO में वो तो स्पेशल देता है ना, कभी दोहा डेवलपमेंट एजेंडा में क्या हुआ ऐसा करके ही पूछ लेता है कभी कभी। NIO पे क्लिक करिए आप, NIO पे करूँ क्या? देख लो मतलब शायद ये पर कितना डायरेक्टर होगा के कल देख लो। इलेक्शन को लेकर भी एक इशू रहता है। PC मैम प्लीज बोलिए आप। सर मैं ये बोल रही थी कि जो डायरेक्टर का इशू रहता है ना, उसको लेकर भी मतलब प्रॉब्लम रहता है कि वो बोलते हैं कि कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं देना चाहिए, जबकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है उनको इलेक्ट करना चाहिए। उसमें आई थिंक ऐसा है ना कि वर्ल्ड बैंक एंड एक है IMF, किसी एक में यूरोप का होता है, किसी एक में USA का होता है, ये उन्होंने फिक्स कर लिया है। हम्म। और कुछ रिफॉर्म हुआ था G20 समिट में 2010 में, जो मतलब फोर्स में आया 2016 में, कि ब्रिक्स कंट्रीज का शेयर इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, तो कल अपन ने शायद NIO पढ़ लिया था ना, ये थोड़ा नीचे ले लीजिए सर। ये हो गया ना कल? हाँ हो गया ये। तो ठीक है, नीचे वाला देख लीजिए, ये भी हो गया था। हाँ, यहाँ से आगे स्टार्ट करना, आई थिंक WTO नेगोशिएशन से। हाँ ठीक है, तो इसमें लिखा है सी थियरी फ्रॉम हेवुड्स, तो पढ़ लीजिएगा आप हेवुड से। तो इवोल्यूशन है, ड्यू टू काउंटर ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स WTO हैज टू एक्नॉलेज प्राइमेसी ऑफ डेवलपमेंट ओवर ट्रेड. दिस लेड टू दोहा डेवलपमेंट टॉक्स which remains inconclusive and developed countries are trying to push trade over development. ठीक है, तो वही मतलब एजेंडा याद रखो यार, डेवलपिंग के लिए डेवलपमेंट है फोकस, एंड डेवलप्ड वर्ल्ड के लिए ट्रेड इंपॉर्टेंट है। नैरोबी समिट 2014 हुआ था, उसमें डेवलप्ड कंट्रीज कॉल्ड फॉर न्यू अप्रोचेस, इफेक्टिव कोलैप्स ऑफ दोहा राउंड। बाली समिट में पीस क्लॉज आया इन एग्रीकल्चरल निगोशिएशंस। अपन ने देखा ना एग्री सब्सिडीज के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को रिस्पाइट मिला है इसके थ्रू, कि टेम्परेरी आप देते रहो जब तक फाइनल एग्रीमेंट नहीं बनता है। निगोशिएशंस आके देखो, एक है एग्रीकल्चरल निगोशिएशन जो 3 पिलर पे है बेस, एक है मार्केट एक्सेस, एक्सपोर्ट सब्सिडी, डोमेस्टिक सपोर्ट। मार्केट एक्सेस में है स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स, जो अपन ने देख लिया डिटेल में अभी। फिर डोमेस्टिक सपोर्ट में ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स है। ग्रीन बॉक्स मतलब ट्रेड डिस्टॉर्टिंग नहीं होता है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लेते हैं। एम्बर बॉक्स में क्या था और ब्लू बॉक्स में क्या था, याद आ रहा है किसी को? हाँ सर, यही था कि एम्बर बॉक्स जो होती है वो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग है, और जो ब्लू बॉक्स होती है उसको ट्रेड डिस्टॉर्टिंग नहीं कहते। मतलब जो MSP वगैरह का जो कंसेप्ट आता है वो एम्बर बॉक्स में बताते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करिए। ओके, हाँ, तो एम्बर बॉक्स जो होता है ना, ट्रेड डिस्टॉर्टिंग जो MSP वगैरह है, उसमें 5% डेवलप्ड के लिए, 10% है अदर कंट्रीज के लिए, एट द बेस प्राइस ऑफ 1988 लेवल्स। ठीक है, एंड ब्लू बॉक्स के अंदर अभी जैसा पढ़ा था अपन ने, कि जो ऐसे सब्सिडी है जो फार्मर्स को फार्मिंग से बाहर निकालते हैं, मतलब उनको ये एनिमल हस्बेंड्री वगैरह में प्रमोट करते हैं कि बाहर निकलो आप करके, ये EU यूज करता है बेसिकली। ठीक है, दूसरा है नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस, इसके अंदर डिसएग्रीमेंट है और स्विस फॉर्मूला, दैट इज हायर टैरिफ मींस हायर कट्स। फिर ट्रेड इन सर्विसेज का देखा अपन ने, मोड 1 2 3 4। मोड 1 में BPO होता है, जिसमें उसको यूज करते हैं किसी और कंट्री में। मोड 2 होते हैं सर्विसेज उसी कंट्री में यूज करते हैं, टूरिज्म जैसे हो गया। मोड 3 हो गया जिसमें कमर्शियल प्रेजेंस होता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस वगैरह आएगा। एंड मोड 4 में मूवमेंट ऑफ पीपल। एग्रीकल्चरल हिपोक्रेसी ऑफ डेवलप्ड कंट्री देखो कैसे दिखाया है, नीचे थोड़ा। इन द केस ऑफ Malawi, the government agreed to eliminate the price support backed procurement operations for maize under the International Monetary Fund, World Bank supported programs.
during 98 to 2000 IMF 2002. It led to food crisis and government had to declare a food emergency in 2002. Can somebody read ahead, please? मैं पढ़ लेता हूँ, कहाँ से पढ़ना है? Agri hypocrisy of developed countries. Agricultural hypocrisy of developed countries. In case of Malawi, the government agreed to eliminate price-supported backed procurement operations for maize under the International Monetary Fund, World Bank-supported programs during 1998-2000, IMF 2002. It led to a food crisis and the government had to declare a food emergency in February 2002. Nepal also had price support-backed procurement policy for rice in the past, which was discontinued in the 1990s. Given the importance of price support-backed public stockholding, the government of Nepal again announced the policy of rice in November 2016. The US, United Kingdom, European Economic Community have used price support-backed procurement policy in the past to boost agricultural growth. South Center 2015. At present, the US is implementing Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) to provide a food purchase assistance for poor living in the country. However, US does not procure from the farmers. Instead, deficiency payment is given to eligible farmers. For instance, the government announces a target price of agricultural commodities under the Price Loss Coverage Program. The peace clause is subject to a large number of conditionality. US has shifted nearly 88% of subsidies under the Green Box in conspicuous manner. US has filed complaint in WTO of India breaching 10% mark in agreement on agriculture, disagreeing the peace clause. कंटिन्यू करना है? हाँ कंटिन्यू कर लीजिए सर. Present direction of WTO. Concerns. Developed countries are undermining multilateralism. A rise in regional groupings like TPP, APEC, RCEP. TRIPS plus measures in negotiations. Various continuous issues like dispute resolution, gender concerns, e-commerce, IUU, fishing are being pushed. Example in recent Argentina summit. Rise of protectionism. US has openly said that it will support WTO only if it fulfills its national interest. WTO suffering from legitimation crisis. North-South debate. Developed countries are giving preference to trade over development. Lack of unity among third world countries. Achievements. Reduced tariffs from 40% in 1947 to 3% in 2000. WTO has given prominent voice to post-colonial societies. A platform for South-South collaboration to fight neo-imperialism. Developed countries are not able to completely hijack the agenda. In 11th bilateral conference in Buenos Aires, none of the offensive interests of India were fulfilled. However, its defensive interests remain protected. Grievances of ये USA. समराइज करना है क्या? कर दीजिए. ठीक है, कंसर्न्स में देखिए बस. एग्रीकल्चर हिपोक्रेसी आई डोंट थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें. प्रेजेंट डायरेक्शन देखो, कंसर्न्स क्या क्या है उसमें WTO के. तो अंडरमाइनिंग मल्टीलैटरलिज्म, रीजनल ग्रुपिंग बढ़ रहे हैं, ट्रिप्स प्लस मेजर के नेगोशिएशन चल रहा है अभी, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन वगैरह अभी नहीं चल रहा है, मतलब जेंडर कंसर्न्स है, ई कॉमर्स, फिशिंग, ये सब कंसर्न्स है अभी. प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है, लेजिटिमेशन क्राइसिस से फेस कर रहे हैं, नॉर्थ साउथ डिबेट हो रहा है, वही मतलब डेवलपमेंट वर्सेस ट्रेड वाला. फिर लैक ऑफ यूनिटी है थर्ड वर्ल्ड के बारे में. फिर अचीवमेंट्स क्या क्या है, टैरिफ कम हुए हैं 40% से 3%. फिर पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी को वॉइस मिला है, साउथ साउथ कोलैबोरेशन हो रहा है न्यू इंपीरियलिज्म को फाइट करने के लिए. डेवलप्ड कंट्रीज कंप्लीटली हाईजैक नहीं कर पा रहे एंड डिफेंसिव इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहे हैं. इवन इफ ऑफेंसिव नहीं भी हो रहे हैं तो एटलीस्ट डिफेंसिव तो हो ही रहे हैं. एंड इसमें अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था ना कि WTO रिमेन्स रिलेवेंट फॉर वीकर कंट्रीज टू निगोशिएट इन अ बेटर मैनर. ठीक है.
प्लीज कंटिन्यू सर। ठीक है। Grievances of USA. WTO failed to enforce the norms. China continues to be protectionist. WTO has failed to deliver justice. थोड़ा Dispute जूम settlement करेंगे। board. Okay. Grievances of USA. WTO failed to enforce the norms. China continues to be protectionist. WTO has failed to deliver justice. Dispute settlement body. According to USA, DSB has become activist and going beyond its mandate, exceeding the time limit of resolving the dispute within 90 days. Attitude of countries like India. New guidelines for recognizing country as a developing country. China and India cannot receive similar treatment as other countries. Way forward. Currently it seems that either multilateralism will collapse or trading order will change as per wishes of developed nations. It is also to be noted that headquarters of WTO is located in same ill-fated building as LON, which died due to American isolationism. लीग ऑफ नेशंस। अच्छा, League of Nations, okay. Robert Azevedo. This is the time for anyone concerned with World Trading System to speak up. Both the disputes settlement system and functioning of its regular work program need significant reforms so that there is filling of democratic deficit in the system and a more equitable distribution of its outcomes. China and India should take leadership within and outside WTO. The Committee of Nations, will have to work collectively for better governance of global public goods, trading being one of them. India organized mini ministerial meet in New Delhi after 11 WTO summit. Multilateralism in era of complex interdependence is need not only for developing countries but also for developed countries. This will require much more proactiveness and flexibility on the part of US, EU, China, India and other emerging economies. They should realize the importance of finding negotiated solutions to problems through dialogues, and that even with give and take, there can be win-win for all. Should not be considered as a zero-sum game, but positive-sum game. कोफी आनंद का है एक कोट, मोर देन एवर। ये टॉपिक 9 में आएगा, अगले आगे कल करेंगे। आप थोड़ा ऊपर ले लीजिए, एक बार मैं समराइज करता हूँ। ठीक है, तो यूएसए के क्या क्या ग्रीवेंसेस है। एक तो कि नॉर्म्स एनफोर्स नहीं कर रहा है डब्ल्यूटीओ, चाइना को टैकल नहीं कर रहा है, चाइना प्रोटेक्शनिज्म कर रहा है। डब्ल्यूटीओ फेल हो रहा है डिलीवरी ऑफ जस्टिस में। कैसे? डिस्प्यूट सेटलमेंट जो बॉडी है वो काम नहीं कर रही है, वो ज्यादा एक्टिविज्म कर रहे हैं अननेसेसरली। डिस्प्यूट्स 90 डेज में सेटल नहीं करते हैं, ऐसा यूएसए का मानना है सब कुछ है। उनको प्रॉब्लम है कंट्रीज लाइक इंडिया से जो एटीट्यूड दिखाता है, जो कि अलग अलग एजेंडा लेके आते हैं एंड स्टॉलिंग हो रहा है ना पूरा निगोशिएशंस का। न्यू गाइडलाइंस जो है रिकॉग्निशन ऑफ कंट्री के लिए, डेवलपिंग के लिए, वो आने चाहिए उनको, क्योंकि इंडिया एंड चाइना कैन नॉट कंटिन्यू टू रिमेन सिमिलर ट्रीटमेंट। एंड इसी के चलते आई थिंक यूएसए ने वो भी करा था ना, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस से इंडिया को बाहर निकाला था। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या है? फिर मल्टीलैटरलिज्म को कोलैप्स करने से बचाना होगा। हेडक्वार्टर्स ऑफ डब्ल्यूटीओ जो इट इज इन द सेम बिल्डिंग एज इल फेटेड लीग ऑफ नेशन का बिल्डिंग। रॉबर्ट एजिविडो है, याद रखना, एक ही स्कॉलर मिला है। दिस इज द टाइम फॉर एनीवन कंसर्न्ड विद द वर्ल्ड ट्रेडिंग सिस्टम टू स्पीक अप। फिर सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स की जरूरत है, जैसे जोसेफ स्टिग्लिट्स ने बोला है कि डेमोक्रेटिक डिफिसिट नीड्स टू बी एड्रेस्ड इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ऐसा कुछ बोला है ना उन्होंने। फिर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटकम्स होना चाहिए। चाइना एंड इंडिया शुड टेक लीडरशिप विद इन एज वेल एज आउटसाइड डब्ल्यूटीओ। नेशंस, कमिटी ऑफ नेशंस शुड वर्क कलेक्टिवली। थोड़ा नीचे ले लीजिए। मल्टीलैटरलिज्म इन एरा ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस इज नीडेड फॉर बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, दोनों के लिए जरूरत है। प्रोएक्टिवनेस की जरूरत है, विन विन फॉर ऑल करने की जरूरत है। वी शुड नॉट थिंक ऑफ इट एज अ जीरो सम गेम बट पॉजिटिव सम गेम।
तो दैट्स ऑल ऑन WTO एंड द टॉपिक नंबर 8। अब बताओ कि आप लोग के नोट्स में क्या एक्स्ट्रा दिया है, क्योंकि इसमें स्कॉलरली को तो कमेंट कुछ है नहीं है ज़्यादा नोट्स में, तो वी नीड समथिंग विच कैन बी यूटिलाइज प्रॉपरली। आप लोग नोट्स ओपन करे क्या आप लोगों ने? प्लीज ओपन कर लीजिए, इफ नॉट सेशन अभी खत्म हो गया है। इफ यू गाइस कैन गिव सम एक्स्ट्रा इनपुट्स तो रिकॉर्डिंग में आएगा, रिवीजन के लिए काम आएगा बाद में, प्लीज बता दीजिए थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा। इफ नॉट अभी गूगल सर्च कर लीजिए, थोड़ा सा मिलेगा तो। कुछ नहीं है भाई नोट्स में। एक कोट है, वो आई डोंट नो इट रेलेवेंट है कि नहीं। COVID-19 has shown us the limitations of existing international system. In the post-COVID world, we need a new template of globalization based on fairness, equality, humanity. We need international institutions that are more representative of today's world. We need to promote human welfare and not focus on economic growth alone. India has long championed such initiatives. ये कोट है PM नरेंद्र मोदी का। एंड इन्हीं का एक और है, द 21st century cannot be run by the rules and regulations and institutions of the 20th century. तो मतलब इसको थोड़ा सा मोल्ड करके लिख सकते हैं अपन PM मोदी के नाम से। और हाँ कुछ मिल रहा बिल्कुल, था? बढ़िया। किसी को और कुछ मिला है क्या? प्लीज आप लोग ढूंढ के ग्रुप में डालिए यार, तो इसके ऊपर स्कॉलरली कमेंट ज्यादा नहीं है। इफ पॉसिबल प्लीज डाल दीजिए, देख लीजिए थोड़ा सा। एंड फॉर दोज हु आर वाचिंग रिकॉर्डिंग, यहाँ पे ही सेशन खत्म है। विल स्पेंड 10 मिनट्स लुकिंग फॉर समथिंग एक्स्ट्रा इफ यू कैन फाइंड समथिंग। एक कीवर्ड याद रख लो, एक कीवर्ड है जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव इन द कंटेक्स्ट ऑफ WTO। इसमें ये होता है कि दीज आर निगोशिएटिंग टूल है ये, इनिशिएटेड बाय अ ग्रुप ऑफ WTO मेंबर्स who seek to advance discussion on the certain specific issues without adhering to the rule of consensus decision making involving the whole WTO membership. They are open to any WTO member. तो जस्ट मतलब यूनिक टर्म है जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव। ये किसके कंटेक्स्ट में ऐसा पूछेंगे तो बोलना है कि WTO है, प्रीलिम में भी आ सकता है ना।
तो गाइस वी आर लुकिंग फॉर सम वैल्यू एडिशन ऑन डब्ल्यूटीओ टॉपिक। अगर किसी के पास कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो प्लीज बता दीजिए। आप लोग सभी ढूंढ रहे हैं क्या? सत्यम सर, पीसी क्रिएचर, केजे, सुदर्शन, फ्री। हाँ, देख रहा हूँ, ऑनलाइन देख रहा हूँ। हाँ मतलब गूगल कर लीजिए, टेलीग्राम पे ढूंढ लीजिए, कहीं भी ढूंढो। यू फाइंड एनीथिंग अबाउट डब्ल्यूटीओ प्लीज टेल। जो भी न्यूज में मिल रहा है कुछ भी हो ना। सुदर्शन, वी आर डूइंग डब्ल्यूटीओ टॉपिक। इफ यू हैव एनी इनपुट्स ऑन दैट एक्स्ट्रा स्कॉलरली ओपिनियन तो बता दीजिए। एक कमेंट मिला है, आई विल रीड इट आउट। It is crucial for the future trade talks to be anchored in the SDGs. This alone will help the WTO achieve the objectives laid down in the Marrakesh Agreement establishing the organizations. तो objectives क्या क्या देख लो। Raising the standard of living, ensuring full employment, the optimal use of resources in accordance with the objectives of sustainable development, and finally, to ensure that this happens for all countries at different levels of economic development. A new SDG round of trade negotiations that promises to do this has the potential to not only attack full consensus of all WTO members, but could also help resuscitate the moribund WTO. बढ़िया। एक सी राजा मोहन का एक छोटा सा आर्टिकल मिला है, उसमें एक छोटा पैराग्राफ अच्छा लगा मुझे। significant political contentions within the US and between the US and China to reform, reorient, or bypass the WTO system are at hand. All major economies will be drawn into this conflict. Hobbled as it was by shaky political coalitions and preoccupied by the multiple domestic challenges, India in mid-1990s struggled to cope up with profound changes in global economic order. As world trade system arrives at a contingent moment, a quarter of century later, India is hopefully better prepared. यार थोड़ा हिंदी में बता दो क्या था ये, समझा नहीं यार। एक सेकेंड बताता हूँ। मतलब क्रक्स यही है कि वो ये बोलना चाह रहे हैं कि यूएसए और चाइना के बीच में काफी टसल चल रहा है मेजरली डब्ल्यूटीओ को रिफॉर्म और रीओरेंट करने में, और उन्होंने कंपेयर किया इंडिया को प्रीवियसली और अभी। जैसे मिड 1990s में इंडिया इतना कैपेबल नहीं था ये सब जो मल्टीपल चैलेंजेस थे डब्ल्यूटीओ में उसको टैकल करने के लिए, पर अब सी राजामोहन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी इंडिया वेल इक्विप्ड और वेल कैपेबल है कोई भी इंटरनेशनल डब्ल्यूटीओ के डिस्प्यूट्स या चैलेंजेस जो भी आएंगे उनको हैंडल करने में। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा मेरे को भी एक मिला है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख लो एक बार। फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया द मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम एम्बॉडीड बाय द डब्ल्यूटीओ प्रोवाइड्स सिक्योरिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। ये है मोहन कुमार ने बोला है कोई। अब ये मोहन कुमार अपने ग्रुप का कोई है या फिर कोई स्कॉलर है पता नहीं भाई। अपने जयशंकर साहब का भी तो कोई होगा कोट। गूगल कर लो ना WTO एंड एस जयशंकर, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। स्पेसिफिक कुछ मिल नहीं रहा।
रिकॉर्डिंग बंद हो गया है ना? चालू है सर रिकॉर्डिंग। अच्छा। यार एक प्रोफेसर रेनहार्ड का स्टेटमेंट है, किसी आंसर भी मिला है मेरे को। Along with these challenges, the serious blow to global economic order has come from a rise of right across the world, economic nationalism, protectionism, Brexit, trade war between the USA and China, COVID-19 pandemic, and virtual breakdown of global trading order. These are considered as the last nail in the coffin of the global economic order. ये बोला प्रोफेसर रेनहार्ट। But it doesn't mean global economic order may not be revived. Shashi Tharoor and Samir Saran in their book The New Global World Disorder highlighted that reforming economic governance is global good. ठीक है, मतलब एक और याद रख लो कि WTO इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ न्यू लिबरल ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर। मतलब लिखने के लिए अच्छा लगता है बस ये। कुछ ऐड करना है किसी को? मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता है ना। All right, thank you very much everyone who participated, and for those who are watching on YouTube, if you like these videos, please like, share and subscribe to our channel. Thank you guys.